ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے ایک ویڈیو سوال ہے، نبی کا در در کہتا ہے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر، سنا ہے کیا کہتا ہے، سنا ہے اس کے بڑے یہی کہتے رہے سنا ہے. اس کے بڑے یہی کہتے رہے سنا ہے، یہ یہی کہتا ہے سنا ہے، آنے والی نسل یہی کہے گی سنا ہے. ارے اگر اپنے دعوے میں سچا ہے قاضی کی بات کو مات کر کہ سنا نہیں دیکھا ہے. ان کو چھوڑ کون دیتا ہے کھلا؟ ایسی مخلوقوں کو تھوڑا باندھ کر ہی رکھا کریں. چلیے، ویسے تو شاید اس کا جواب نہ فاروق رضوی صاحب نے دے دیا ہے، لیکن شاید وہ ان لوگوں کو کافی نہیں ہے. انہوں نے دلیل شاید اس بارے میں بہت مختصر سا کلام کیا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے دیکھا ہے تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کا دیدار کیا ہے. تو یہ جو اعتراض ہے وہ دو طریقے کے سوال جو ہے نا وہ کریٹ کر رہا ہے. یا تو ان کا اعتراض حیات النبی پر ہے کہ نبی حیات نہیں ہوتے تو لہٰذا آپ کیسے آ سکتے ہیں، یا پھر دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ حیات کے تو قائل ہوں مگر یہ کہ اختیار کے قائل نہ ہوں کہ نبی اپنی قبروں میں حیات تو ہیں مگر اب اٹھ کر باہر نہیں آ سکتے. ہو سکتا ہے یہ اعتراض اس لیے ہو کیونکہ اہل سنت میں کہا جاتا ہے کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھا آج تک کسی نے بھی نہیں ہے اور ان پہ کوئی دلیل بھی شاید نہ ہو کہ نبی آ سکتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ اعتراض کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے یہ 2 معنی میں جواب ہو. تو مختصر میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا، لیکن پھر بھی جواب تھوڑا سا بڑا ہو ہی جانا ہے. بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ میں کسی بھی بات کو 2 بار 3 بار ریپیٹ کرتا ہوں. اس کے پیچھے دراصل وجہ یہ ہے کہ میری عادت میں شمار ہے، کیونکہ بہت سارے مقام پر کوچنگ کرنے کا یا پڑھانے کا موقع ملا تو وہاں پر اسٹوڈنٹ یعنی کافی ساری فیلڈ میں لینگویجز کی یا کمپیوٹر کی، تو ایسے میں کیا ہوتا ہے نا اسٹوڈنٹ کو بار بار بات کو ریپیٹ کرنے کی وجہ سے وہ عادت آ جاتی ہے کہ ایک ہی بار کو جب تک ایسا لگتا ہے کہ شاید سامنے والا سمجھا نہیں ہے، اس لیے 2 بار 3 بار بولنے کی عادت ہوتی ہے. میں اس سے تھوڑا اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش میں ہوں، لیکن پھر بھی اگر ایسا ہو جایا کرے تو آپ سن لیا کریں، صبر رکھ لیا کریں. تو ابھی یہ کہ حیات النبی کے اوپر بات ہے کہ نبی آ سکتے نہیں آ سکتے، ان صاحب نے اعتراض کیا، اس کا کیا جواب ہونا چاہیے. میں اس کا جواب پیش کروں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی یعنی مثال پیش کروں گا تاکہ آپ کو جواب جو ہے آپ کے ذہن میں بہت اچھے سے آ جائے. اور میرا اکثر مقصد بھی یہی ہوتا ہے مثال دینے کا کہ جب تک سامنے والے کے بات سمجھ میں نہ آئے اس کو بس دلیل دے کے مطمئن نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ بعض چیزیں جو ہے نا دلیل سے عقل میں نہیں آتی، اس کو بندہ زبردستی تسلیم کر لیتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے جائز ہوگا، لیکن کبھی کبھی وہ اس کو ایکسیپٹ اس کا ذہن نہیں کر رہا ہوتا. تو اس کی پہلے ایک مثال سمجھے، پھر میں آگے انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ کلام کروں گا. آپ کو سمجھنے کے لیے کہ ایک شریعت کے اندر ایک قاعدہ ہے، ضابطہ ہے، رول ہے، نیم ہے، فنڈامنٹل ہے، پرنسپل ہے. وہ یہ ہے کہ ہر وہ کرامت جو کسی ولی سے ثابت ہو نبی اس کو کرنے سے عاجز نہیں ہوتا، اگرچہ اس کا ظہور نبی سے نہ ہوا ہو. اب دوبارہ سمجھیے کہ کسی ولی سے کوئی بھی کرامت جو کسی ولی سے ثابت ہو نبی اس کو کرنے سے عاجز نہیں ہوتا، یعنی نبی اس کو کرنے کا اہل ہوتا ہے، نبی اس کرامت کو کرنے سے کمزور نہیں ہوتا، چاہے وہ نبی کے وقت میں پیش آئی ہو یا نہ آئی ہو، یا نبی نے کی ہو یا نہ کی ہو، لیکن پھر بھی نبی اس سے عاجز نہیں ہوتا. اور اب اس نیم کو، اس رولز کو آپ پریکٹیکلی دیکھیں. مثلا یہ سمجھیں کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کٹورے کے اندر ساگر کو منگوا لیا، ٹھیک ہے. اب لوگ اس پہ اعتراض کریں گے کہ ساگر کو کٹورے میں کیسے منگوا لیا، نبی نے تو کبھی ایسا کیا نہیں. تو نبی نے نہیں کیا، نہ کرنے کی دلیل اس بات کی نہیں ہو سکتی کہ کر بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے. کیا نہیں، وہ کبھی واقعہ انا ساگر وہاں نہیں تھا تو پیش نہیں آیا، جب یہاں تھا تو یہاں پیش آیا. ویسے اور بھی بہت ساری اس طریقے کی حضور علیہ السلام سے معجزے ثابت ہیں کٹورے میں انگلیوں سے پانی وغیرہ کے نکالنے کے. لیکن ایک یہ ہے کہ یعنی اعتراض والی بات کہ وہ ساگر سمندر جو ہے وہ اس میں ساگر نہیں بھرا کٹورے میں، نبی نے تو ایسا نہیں کیا.
तो जब अब इनके जवाब की तरफ आते हैं इन दोनों बातों को अलग रख कर, कि इन्होंने कहा कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम को किसी ने यानी इन्होंने देखा तो नहीं लोगों ने, लेकिन इनके दावे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, अभी मैं अगर किताब का हवाला दूंगा तो बाज़ लोग एतराज़ करेंगे कि फतावा रज़विया से बोल दिया, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा की किताब से बोल दिया, वो तो बरेलवी हैं, उनकी किताब से दलील लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको जो हवाला देता हूँ वो आप नोट कर लीजिए। वैसे एडिटिंग में स्क्रीन के ऊपर मैं उसका स्क्रीनशॉट और जिल्द वगैरह मुकम्मल लिख दूंगा इंशाअल्लाह। किताब का नाम है फतावा उस्मानी और इसके लिखने वाले मुफ्ती उस्मान साहब जो हैं वो देवबंदी नज़रिए के हामिल हैं, तो ज़ाहिर है कि वो बरेलवी नहीं है। इनकी किताब के अंदर जिल्द नंबर 1 में एक सवाल हुआ हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जो मेराज हुई है वो मेराज जिस्मानी है। यानी पहले सवाल ये हुआ कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हयात के ताल्लुक़ से कि हयात के बारे में क्या नज़रिया रखना चाहिए। तो ये देवबंदी नज़रिया रखने वाले मुफ्ती साहब इसका जवाब ये देते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हयात जो है ना, यानी उसका रूह का रिश्ता जो जिस्म के साथ वो इतना कवी है कि वो आम ज़िंदगी की हयात से भी ज़्यादा कवी, यानी आम लोगों की हयात से ज़्यादा। हालांकि वो हयात बरज़खी है लेकिन फिर भी उसका रिश्ता, रूह का रिश्ता जिस्म के साथ इतना है कि उसको मुतलक़न अहया के ऊपर जो है ना वो इतलाक़ किया जाता है, दलील बनाई जाती है कि नबी ज़िंदा है। ये हयात नबी की जो उन्होंने दलील दी कि वो रिश्ता इतना कवी जिस्म के रूह के साथ होता है। फिर सामने वाले ने सवाल किया कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम जब मेराज की रात गए वो जिस्म के साथ गए या खाली रूह के साथ गए। तो मुफ्ती साहब ने इसमें लिखा है कि इसके बारे में कोई यानी रिवायत इनको नहीं मिली, लेकिन ये कहते हैं कि ज़ाहिर यही होता है कि वो जिस्म के साथ मेराज हुई थी। अब यहाँ पे एक बात यह है कि बहुत सी चीज़ें अक्ल में नहीं आती, जैसे कि बाज़ लोगों का यानी मामूल होता है कि वो हर चीज़ को थोड़ा अक्ल से समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि नबी अब कैसे आ सकते हैं मदद के लिए। जैसे कि ये भाई शायद अक्ल से स्टेज पर खड़े हो गए, अक्ल से इसको समझने की कोशिश कर रहे होंगे। तो उनका यानी फतावा उस्मानी की ये दलील यानी मैं उनके घर से इसलिए दे रहा हूँ ताकि कोई एतराज़ ना करे कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मेराज जो है ना वो जिस्म के साथ हुई, जिस्म के साथ हुई। अब सोचने वाली बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला का दीदार करना है और दीदार मखलूक को करना है, और अल्लाह ताला तमाम जिहत से यानी तमाम सिमतों से, तमाम दिशाओं से वो पाक है। ऐसा नहीं कह सकते कि अल्लाह सिर्फ नॉर्थ में है, साउथ में नहीं है, या ऊपर है तो नीचे नहीं है। अब इस तरीके का मामला यानी इस्लामी अकायद के ख़िलाफ़ है। अब जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला का दीदार किया मेराज में और ये जिस्म के साथ गए, तो आप सोचें कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम जिस्म के साथ जब अल्लाह ताला के दीदार के लिए गए तो दीदार किस तरह किया होगा, यानी सामने देखा होगा या दाएं देखा होगा या बाएं देखा होगा। एक सोचने वाली बात है जो लोगों के अक्ल में नहीं आती। लिहाजा ये कि हुज़ूर का जिस्म के साथ जाना और जो सातों आसमान के भी पार है और इतनी दूरी और इतनी कम मुद्दत में तय करना, जिस पर कुरान हदीस ने इसकी दलील भी दी। आला हज़रत ने इसी को एक शेर में बयान भी किया कि जिहत से कह दो कि खिरत से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुज़रे गुज़रने वाले, पड़े हैं यहाँ खुद जिहत को लाले, किसे बताए कहाँ गए थे। और एक मकाम पर शायद एक और शेर भी है कि शश जिहत समते मुकाबिल, शब रोज़ एक ही हाल, धूम वन नज्म में है आपकी बिनाई की। तो इस तरह से ये बातें भी जो है ना बज़ाहिर अकल में नहीं आ रही। फिर एक सवाल ये हुआ कि जो नमाज़ों के ताल्लुक़ से जो गुफ्तगू हुई अल्लाह तबारक व तआला से हुज़ूर अलैहिस्सलाम की, वो खाली रूह की गुफ्तगू थी या जिस्म की गुफ्तगू थी। तो इन्होंने जवाब लिखा कि वो जिस्म के साथ गुफ्तगू थी। ठीक है, तो यहाँ तो नबी का पहले इख्तियार के ज़मीन पे रहते हुए अल्लाह तबारक व तआला का दीदार भी किया और फिर मेराज को गए, तो ये सारी बातें भी अकल में नहीं आती, लेकिन नबी की कुदरत को साबित करती हैं, उनकी ताकत को साबित करती हैं, अगर जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दी हुई हैं उनको साबित करती हैं। अब एक दूसरी किताब है जिसका नाम है, यानी ये इख्तियार के ताल्लुक़ से मैंने बात की है कि हर चीज़ अगर अकल में तोली जाए तो ये बात भी अकल में नहीं आ रही कि अल्लाह को कैसे देखा होगा और किस तरह से गुफ्तगू की और इतने कम वक्त में कैसे गए और कैसे आए। लेकिन ये लोग यानी इनके मकतब फ़िक्र के लोग इस बात को तस्लीम करें। अब दूसरी बात ये यानी जो ख़ास इसका जवाब है वो ये कि एक किताब का नाम है फतावा ज़करिया। इसके लिखने वाले भी जो हैं वो बरेलवी नहीं है, देवबंदी कहलाने वाले हैं। इनसे सवाल हुआ क्या नबी की ज़ियारत आलम बेदारी में हो सकती है। मतलब यही जो ये एतराज़ कर रहे हैं ना, यही एतराज़ हुआ सवाल की सूरत में, क्या नबी को जागते में होश की हालत में देख सकते हैं। सवाल करने वाला भी जानता है कि मैं नबी के वक्त में नहीं हूँ और नबी बज़ाहिर वफ़ात भी कर चुके, लेकिन अब अगर कोई शख्स दावा करे कि नबी अलैहिस्सलाम को देखा जा सकता है तो ये बात सही है और वो भी जागते में देखा जा सकता है, तो इनके
मुफ्ती साहब ने जवाब लिखा कि हाँ ये बात सही है, नबी को आलम बेदारी में देखा जा सकता है। अब सवाल ये आता है कि ये बात इनके जो है ना मानने वाले उलमा भी तस्लीम कर रहे हैं कि देखा जा सकता है नबी को, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब देखा जा सकता है तो वो आ भी सकते हैं, तभी तो देखा जा सकता है, वरना इनको कहना चाहिए था कि वो आ ही नहीं सकते तो देखा कहाँ से जा सकता है। इसको ऐसा समझा, अगर कोई मुझसे सवाल पूछे क्या इस ज़माने में डायनासोर को देखा जा सकता है, तो मैं क्या कहूँगा कि डायनासोर जब है ही नहीं तो अब देखा कहाँ से जा सकता है। लेकिन इसी तरह जब इन्होंने जवाब दिया कि हाँ नबी को देखा जा सकता है और साथ में दलील दी इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह की कि उन्होंने किताब के अंदर पूरी तफसील और दलाइल के साथ और वाक़यात के साथ भी इसको साबित किया है कि नबी को आलम बेदारी में देखा जा सकता है, और ये बात देवबंद के फतवे में लिखी हुई है, ना कि बरेलवी किताब में। तो अब जब नबी को देखा जा सकता है ये बात साबित हो गई है, तो इसलिए जो सुन्नी आवाम कहती है कि सुना है आप हर आशिक के घर, वो बात बिल्कुल दुरुस्त है। अभी चले इस बात से आगे एक और दलील लीजिए इसी में, यानी आगे चलकर एक वाक़या और भी नकल है, इन्होंने इसी दलाइल के अंदर 2-3 सफ़ा के बाद एक वाक़या लिखा है। मैं मुख्तसर करूँगा कि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, इसलिए वो आपने उलमा से सुना भी होगा। शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के शेर के ताल्लुक़ से है कि एक शख्स जो है वो उनका शेर पढ़ते हुए जा रहे थे, 4 लाइनों का शेर था, 3 लाइनें दोहराते थे, 1 लाइन उनको याद नहीं आती थी। शेख सादी आए, उन्होंने यानी एक सफ़ेद लिबास में बुज़ुर्ग आए, उन्होंने वो 4थी लाइन शेर की बताई और वो चले गए। जाने वाले ने पूछा कि आप कौन हो, आपने मेरी मदद की, आप मुझे बता दो। तो उन्होंने फरमाया कि मैं शेख सादी ही हूँ, यानी जिनका वो शेर पढ़ रहे थे। जब ये शेर पढ़ा जा रहा था, इनके वक्त से कई साल पहले शेख सादी वफ़ात पा चुके थे। तो मतलब ये हुआ कि शेख सादी नबी नहीं है, लेकिन मदद के लिए, और अच्छा ये हिंदुस्तान का वाक़या है कि जो शेर पढ़ रहे थे और शेख सादी की मज़ार हिंदुस्तान में भी नहीं है, तो वो जो है अगर यानी बैरून मुल्क से आ सकते हैं, और कितने लम्हे में, यानी बहुत कम मुद्दत में, बहुत कम टाइम में, बहुत थोड़े वक्त में एक शेर बताने आ सकते हैं। तो यहाँ 2 चीज़ें वाज़ेह, एक तो ये उनको ख़बर थी कि वहाँ पर जो है वो शेर पढ़ा जा रहा है, इसकी वो ख़बर रखते थे, तभी वो मदद के लिए आए। दूसरी बात, उनकी दूरी तय करना कितनी कम मुद्दत में थी। तो आदमी सोचता है कि मदीने से आएंगे तो शायद कोई हवाई जहाज़ का टिकट करा के थोड़ी ना आएंगे, नबी या वली आएंगे। ये उनकी करामतें होती हैं कि वो लम्हे भर में कहीं भी आए, कहीं भी चले जाए। अब एक चीज़ और है कि इसी के अंदर यानी फतावा उस्मानिया के अंदर एक सवाल और भी है, जिसके बारे में ये पूछा गया कि ये जो मेराज की रात हुज़ूर अलैहि सलाम गए थे, दूसरे नबियों ने हुज़ूर अलैहि सलाम की इमामत में जो इक्तिदा में नमाज़ पढ़ी थी, ये जिस्म के साथ पढ़ी थी या इनकी रूह आई थी? तो मुफ्ती साहब कहते हैं कि बाकी नबियों ने जो नमाज़ पढ़ी थी, इमाम हमारे हुज़ूर अलैहि सलाम इमाम बने थे, वो जिस्म के साथ थे। इसके बारे में कोई वाज़ेह दलील नहीं, लेकिन ज़ाहिर है कि वो जिस्म के साथ थे। अब यहाँ सोचने वाली बात है, और यही इनका जवाब भी है। भाई यही दलील अगर मैं फतावा रज़विया से देता तो एतराज़ करते कि यार वो बरेली की किताब है। ये देवबंद की किताब है जिनके मैंने हवाला दिया कि जब हुज़ूर अलैहि सलाम मेराज में गए, इमाम बने, दूसरे नबी आए, उन्होंने नमाज़ पढ़ी, और ये इतना मशहूर वाक़या है कि सब लोग जानते हैं। अब यहाँ एक बात है जो समझने की है कि जो नबी पहले वफ़ात करके जा चुके थे, यानी मसलन आप समझ लीजिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो वफ़ात करके जा चुके थे, जब अपनी कब्रों से वो मस्जिद अक्सा आके नमाज़ पढ़े तो वो जिस्म के साथ आए, पहली चीज़। तो इसका मतलब ये हुआ कि नबी आ सकते हैं ना, तभी तो वो आए नमाज़ पढ़ने। अगर नहीं आ सकते तो ये जवाब देवबंद वाले ख़ुद दे रहे हैं कि वो जिस्म के साथ आए। तो इनका जवाब ख़ुद इनके घर से है, लेकिन ये कि इनको पढ़ने का टाइम नहीं होता, स्टेज पे चिल्लाने का टाइम होता है कि जी सुना है, देखा नहीं, देखा नहीं। इनके खुद मुफ्तियान इकराम कह रहे हैं इस बात को कि हाँ वो जिस्म के साथ आए। दूसरी चीज़, ये जो हुज़ूर अलैहि सलाम मेराज की रात गए और साथ में सारे नबियों ने आके नमाज़ पढ़ी, तो इनका कोई व्हाट्सअप ग्रुप था नबियों का कि जिस पे मैसेज डाला गया हो कि फ़लाँ टाइम में आना, नमाज का टाइम हो जाएगा, नमाज़ पढ़ी जाएगी? ऐसा तो कुछ नहीं था। कोई सोशल मीडिया यूज़ नहीं होता था कि ऐसी कोई रिवायत मिलती है कि इनको ख़बर किया गया हो, यानी अल्लाह ताला ने पहले जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा कि आप हुजूर को लाओ, इनको उठाने के बाद बाकी नबियों की कब्रों पे जाना, उनको ख़बर करना कि इतने बजे पहुँचना है, नमाज होनी है। ऐसी कोई रिवायत मिलती है? अब आप ख़ुद सोचें कि हुजूर अलैहिस्सलाम जब मस्जिद अक्सा में गए तो बाकी नबियों को ख़बर थी कि वो तशरीफ़ ला रहे हैं, और बाकी नबी अपनी कब्रों से पहुँचे नमाज़ पढ़ने और जिस्म के साथ। तो पता क्या चला कि नबी अपनी कब्रों में ज़िंदा होते हैं और आ जा भी सकते हैं, वो तभी आए थे नमाज के लिए। ये चीज़ हुई पहली क्लियर। अब आप उस बात की तरफ आइए जो मैंने आपको कायदा समझाया था कि कोई चीज़ वली से साबित हो तो नबी से। अभी ये देखें, ये तो चले हदीस का वाक़या है कि आप इसका इनकार करते हैं, लेकिन लिखा देवबंदियों ने, ठीक है। शेख सादी के वाक़े को भी इन्होंने ही नकल किया है। शेख सादी कौन है? ये कोई नबी नहीं है,
शेख सादी कोई सहाबा भी नहीं है, ये अल्लाह ताला के एक नेक बंदे, आप इनको वली कहें कि ये एक वली हैं, तो इनकी ताकत देखें कि ये जो है मदद के लिए हिंदुस्तान आए, अपनी मज़ार से उठकर, अपनी कब्र से निकलकर मदद करी। अब हुज़ूर अलैहिस्सलाम अगर किसी के, यानी मिसाल के तौर पर समझे कि मेरे नहीं आए, मैंने मिलाद करी, नहीं आए का मतलब ये नहीं हो सकता कि आ नहीं सकते, क्योंकि कायदा क्या है कि जो काम किसी वली से साबित हो, जो करामत किसी वली से साबित हो, वो नबी से यकीनी तौर से नबी उसको कर सकता है, अगरचे वो ना करे, ठीक है, नबी उससे आजिज़ नहीं होता। तो अगर शेख सादी का आना ये लोग मान सकते हैं देवबंदी हजरात, तो इन भाई साहब से पूछो, काजी साहब से, कि नबी के आने में इनको क्या परेशानी है, यानी क्या इनका अकीदा है कि नबी नहीं आ सकता। तो ये सब दलीलें इनके घर की हैं कि नबी की हयात भी है, नबी जिस्म से आ भी सकते हैं जिस्म के साथ, और नबी के उम्मतियों में बाज़ वलियों को अल्लाह ताला ने क़ुव्वत और ताकत दी, जैसे कि शेख मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला ने 4 वलियों के बारे में फरमाया, जिसमें गौस आज़म भी हैं। फरमाते हैं कि कुछ वलियों को अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी ताकत दी है, उनके जिस्मों को और रूह के साथ उनका रिश्ता इतना कवी कराया कि वो जब चाहें, जहाँ चाहें किसी की मदद को आ सकते हैं। ये शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह बरेली के रहने वाले नहीं थे, ना ही बरेलवी थे, लेकिन ये भी लिखते हैं। तो जब वलियों के लिए ये बात साबित है कि अल्लाह ताला ने ऐसी कुव्वत इनको दी है, तो नबियों के लिए इसका इनकार कौन कर सकता है? यानी मुसलमान तो नहीं कर सकता, मुनाफिक तो कर सकता है। अब परेशानी क्या है कि इनकी किताबों में ख़ुद दलीलें होती हैं हर चीज़ की, लेकिन अब इनकी भी हम पढ़ें और अपनी भी हम पढ़ें, इतना टाइम तो हमारे पास है नहीं, तो अपनी खुद पढ़ लिया करें, उसके बाद स्टेज पे चिल्लाया करें कि आप हर आशिक के घर तशरीफ़ ला सकते हैं या नहीं ला सकते। इसका जवाब अगर आप तक पहुंच जाए तो ये भी बता दें कि शेख सादी कैसे ले आए और बाकी नबियों ने नमाज कैसे पढ़ी, और ये सारी बातें देवबंद की किताब में लिखी हुई हैं। पत्थर में हसन लाले पुरनवार